So your question is that okay. This one, take another triangle. A, B, C. Let it be P, Q, R. AD is median. PM is also a median for triangle ABC. Okay. So in triangle ABC, question is in triangle ABC and triangle PQR, sides AB and AC and median AD. Median AD. Question number 14 of NCERT. In question number 12, AB and AC and median is bisecting one of the AB and AC. Here, median AD is bisecting the third side BC. So mind it. Are correspondingly proportional to PQ, PR and median PM. Median PM. PM is median bisecting the third side QR. Just see, PM is the median bisecting the third side QR. AD is the median bisecting the third side BC. AB, AC and median bisecting third side. PQ, PR, median bisecting third side are proportional, means that AB by PQ, AC by PR equal to AD by PM. Then you have to prove that, to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. Now, what happens here? This figure needs some space below the BC and QR. So now I am just erasing this particular figure, okay, drawing the fresh one so that any construction can be done. So let us try to draw the triangle. Let this is one triangle and this is another triangle. ठीक है. Median AD, median PM. So this A, B, C and D, P, Q, R and this is M. What we have to do? D. Produce AD and PM. Produce AD and PM. अब इसको बढ़ा दिया, इसे भी बढ़ा दिया, up to AD to let it be suppose E and this is suppose F, such that
AD is equal to DE, PM is equal to MM. एंड ज्वाइन एनी ऑफ आइदर बी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, BE एंड QF, ये ज्वाइन कर दिया, इनको भी ज्वाइन करना होगा बाद में, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर किया, क्लियर है। क्या किया, प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इज इक्वल टू DE, प्रोड्यूस PM टू MF सच दैट PM to F such that PM is equal to MF. Then first you prove these two triangles are congruent. Triangle ADC is congruent to triangle EDB, and similarly triangle PMR is congruent to FMQ. कैसे होगा, AD is equal to D है ही कंस्ट्रक्शन से, और AD मीडियन है इसलिए D is the midpoint of BC, so this one is also equal and side angle opposite, vertically opposite angle. So by side angle side, the required congruency can be proved. Okay. So construction पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन भाई, प्रोड्यूस AD to E such that AD equal to DE and उसको भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस PM टू F सच दैट PM इक्वल टू MM. देन ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया था हमने, BE और इधर QF, ध्यान से देखिए, BE and QF. ओके, इन ट्रायंगल ADC एंड EDB, in triangle ADC and triangle ED क्या होगा, ADC and EDB. AD equal to DE by construction, है ना, फिर CD equal to BD since D is midpoint of BC, angle ADC is equal to angle EDB, क्यों, vertically opposite angle. This implies that these two triangles are congruent by side angle side congruence condition. अब ये congruency हुआ तो पर्पस क्या है, पर्पस ये, जैसे ये दो congruent हुए तो हम लोग कहेंगे कि BE is equal to AC, ठीक है। तो CPCT से AC हो गया, AC is equal to EB, और in the same process, इन दोनों को कौन दिखाए, इनको congruent दिखाऊंगा तो QF इज इक्वल टू PR, मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ उसे, सिमिलरली QF इक्वल टू PR, am I right? QF इक्वल टू PR. अब देखो, प्रूव करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग चले आएंगे ट्रायंगल ABE और PQF में. इन ट्रायंगल ABE and triangle PQM, ABE ये वाली ट्रायंगल एंड ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इसको भी यूज करेंगे, इसको
ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यहाँ पर जिसको हमने ए सी वाला पार्ट जो है इक्वल कराया है जिसको, उसको रिप्लेस कर देंगे। चलिए, गिवन दैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, है ना। अब इसमें थोड़ा सा मतलब करते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ओके, वेल एंड गुड। अभी जस्ट हमने प्रूव क्या किया है, ए सी इक्वल टू ई बी, तो ए सी के बदले में ई बी लिख देंगे, और पी क्यू के बदले, पी आर के बदले में, पी आर तो इधर ही है ऊपर में, पी आर के बदले में क्यू एफ लिख देंगे, यहाँ है क्यू एफ, और इसको डबल कर देते हैं, दोनों में ऊपर नीचे ए डी और पी एम करने से, 2 से इंटू करने से कोई हर्ज तो है नहीं, बट नाउ ट्वाइस ए डी बिकम्स ए ई एंड ट्वाइस बिकम बी एम बिकम्स पी एफ। ध्यान से देखिए अगले स्लाइड में हमने कौन सा ट्रायंगल लिया हुआ है, ये वाली बना रहा हूँ मैं फिर से, ए बी ई, और दूसरा क्या है, पी क्यू एफ, और प्रूफ अभी क्या है इसमें लिखा हमने, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी के बदले में ई बी बाई क्यू एफ, ई बी बाई क्यू एफ, एंड देन ए ई बाई पी एफ। कैन आई से दीज टू ट्रायंगल्स ए बी ई इज सिमिलर टू पी क्यू एफ, होगा। और जैसे ही सिमिलर, किसे हुआ, साइड से जैसे ही सिमिलर होगा तो हम कहेंगे कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर यहाँ से बी ए ई इज इक्वल टू क्यू पी एफ, ठीक है। फिर दूसरे तरफ वाले हिस्से में जो है, इधर वाला जो हमने इसे डॉट डॉट लाइन से इसको किया था, इसको अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा के पी क्यू को इसके बराबर दिखाएंगे, ए बी को सी के बराबर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ हमने सिमिलरली वर्ड यूज़ किया था, वहीं पर जैसे ये सिमिलरली यूज़ किया, वहीं पर हम कर सकते थे। तो अब सिमिलरली ट्रायंगल, अब हम लोग क्या लिए थे, ट्रायंगल ए बी लिया था ना हमने, कॉन्ग्रुएंसी क्या लिया था, ए डी सी लिया था, ई डी बी। तो अब लेंगे ए डी सी लिया था और बी डी लिया था, अब लेंगे ए डी बी और ई डी सी। ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। यहाँ भी हम कंग्रुएंसी दिखा देंगे, ये दोनों, ये सिमिलर टू सो सिमिलर, इसको सिमिलर दिखा दो जैसे उसमें दिखाया था, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग ए बी इक्वल टू ई सी दिखा देंगे, और दूसरे वाले ट्रायंगल में पी में दिखा देंगे पी आर जो है, ए बी है, उधर पी आर दिखाया था ना, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर, तो आर एफ के बराबर। देखो ए बी इक्वल टू इसी और पी क्यू इक्वल टू आर एफ, ये दिखाएंगे। और फिर इस बार अब इधर वाला ट्रायंगल ए सी ई एंड पी आर एफ, ठीक है ना, ये तो दिखा दिया। इन ट्रायंगल ए सी एफ एंड पी आर एफ, काम फिर से वही पुराना वाला, गिवन क्या था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड ए डी बाई पी एम। इस ए डी बाई पी एम को ट्वाइस ए डी बाई पी एम इधर लिख दो। अब ए बी इज रिप्लेस्ड बाई व्हाट, ई सी, पी क्यू इज रिप्लेस्ड बाई आर एफ, और ये एज इट इज ए सी पी आर, ये
ट्वाइस ए डी कितना हो गया, तो ए ई और ये हो गया पी एफ। अब देखो दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसी तो है नहीं यार, ये ए बी को हमने इसी के बराबर तो नहीं दिखाया होगा, इसी दिख रहा है, इसी ए बी इसी के ही दिखेगा, ठीक है। तो ए सी एफ नहीं, ए सी ई ही होगा, एफ तो इधर है, ठीक है, ए सी ई। तो देखो ई सी आर एफ के, ए सी पी आर के, ए ई पी एफ के। डज इट मीन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? पी आर एफ वही बाई एस एस एस, और सिमिलर हो गया तो फिर से हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा एंगल बराबर करेंगे, अब इधर वाला बराबर, ई एस सी इक्वल टू एफ पी आर। ई ए सी इक्वल टू एफ पी आर। ये सेकेंड, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट एक एंगल दिखाया हमने, ये दोनों को ऐड करो, बी ए ई एंड ई ए सी। नाउ बी ए ई प्लस ई ए सी इज इक्वल टू, बी ए ई किसके इक्वल है, क्यू पी एफ, क्यू पी एफ प्लस एफ पी आर। फिगर में देखोगे मुझे जहाँ तक लगता है ये हो जाएगा बी ए सी और ये हो जाएगा क्यू पी आर। एंड फाइनली अब आ जाओ वापस, लिखते हो ए बी सी, कुछ हिस्सा इसका हमने अभी नहीं बनाया है जो था, पी क्यू आर, बाकी जो ए डी वो छोड़ दिया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर है। और अभी हमने क्या दिखाया, दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर। दिस implies that triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side similarity. Is it or not? So this question is asked by Aditya Raj. Today is 7th of the September and I am in Katni. Thank you very much.